Hmm. Camouflage. What is this? It's noun as well as camouflage is that chitkabra kapda which military people wear, right? Why do they wear this cloth? Because it's very good at, it helps in mingling with your surrounding. You are not easily noticeable, right? A cloth with brown and green patterns worn by military persons. Camouflage is to hide by mingling, है ना? Mingling, mingle मतलब मिलना, mixing with the surroundings, right? What is mirage? दिखता है पर होता नहीं. मृग मरीचिका. मृग मरीचिका इसी यही बोलते हैं ना. In the summer season, when you look in the distance, it seems as if there is some water body, right? But when you get closer to the place, you find there is nothing. This is actually an optical illusion. An optical illusion or something illusionary. Something illusionary. Illusionary मतलब मायावी. Illusion is भ्रम. And what is the delusion? Delusion, Maya. Delusion is something is not there, but you can see that. क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? होने का भ्रम है? नहीं, किसी चीज के होने का भ्रम, जबकि है नहीं वो. जबकि है नहीं वो. है? हाँ, हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन. hallucinate. है ना? When does it happen? In high fever. In high fever or after getting high. What do you mean by after getting high? You take drugs, you get high. How दारू और ड्रग्स पीने वाला आदमी कैसे चलता है जानते हो? You know why? Because that person feels he has grown, he's bigger, taller than anybody else, right? So that's the reason. उनका पाँव लगता है बहुत बड़ा हो चुका है. That's the reason why they walk like this with heavy feet. कहा है ना? Hallucination after getting high on drugs. He is high on भांग. भांग को क्या बोलते हैं? वीड. कैनबिस. कैनबिस तो धतूरा होता है शायद. मिराज. एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है मिराज. Why is it called मिराज? Because stealth capacity है इसकी. Stealth capacity मतलब छुपने की क्षमता. Stealth capacity मिराज ना. ऐसा फॉर्मेशन होता है मिराज का कि जब आएगा तो आपको लगेगा एक प्लेन आ रहा है.
पीछे कितने प्लेन्स हैं? 7 प्लेन्स हैं. But when you see, you'll find there is just one plane which is coming. And when they get very close, you'll find, oh my god, there are 7 planes. Even if you use an anti-aircraft gun, you can shoot just one, not all 7. Right? But हमारी आंखों से ना 7 दिखते हैं. But on a radar, you can see there are 7 planes. So in a military warfare, they don't use their naked eye. They use sophisticated radar systems to detect. हेलो महारानी, ध्यान दा, तुम्ही को बोल रहे हैं. In military warfare, they use very sophisticated मतलब advanced radar systems to detect है ना, फाइटर जेट्स. नेविगेट का मतलब तो चलना होता है. नेविगेट का मतलब होता है मूव. मेक वे. नेविगेशन, ट्रैवल. हाँ, CAA ही लिखा है, गलती से वो हो गया है. सिंगल आर. सही बात है. आगे. मिरर मतलब क्या होता है? वो भी होता है, पता है कि नहीं? मिरर मतलब दर्पण. मिरर मतलब रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित करना ना, प्रतिछाया दिखाना, प्रतिछवि दिखाना. फिल्म्स, मिरर द सोशल रियलिटीज टू लार्ज एक्सटेंट. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिल्म्स दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं द सोशल रियलिटीज, समाज में जो हकीकत है, बहुत हद तक. टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत सीमा तक, बहुत हद तक. अनुपमा, इज इट हेल्पफुल? आर यू एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज लेक्चर्स? Yes? Okay. So you can take the photograph. You have a laddu. You can distribute. You can distribute it among yourselves. 1 laddu and 3, 6, 9, 10 people. Divide it into 10 equal parts. What is the meaning of delinquent? Delinquence is what? Delinquence क्या होता है? क्राइम. Delinquence मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? बैड बिहेवियर और क्रिमिनल बिहेवियर. A delinquent child, है ना? A delinquent child is a child who behaves badly, who is involved in criminal activities. Who is adolescent?
टीनेजर, है ना, टीनेजर, 13 to teenager, an adolescent, है ना। What is adolescence? किशोरावस्था। ये कौन होता है? किशोरावस्था को क्या बोलेंगे? टीनेज, है ना। बैक टू स्क्वायर वन, है ना। हाँ, बैक टू दी स्टार्ट, है ना, बैक टू द स्टार्टिंग स्टेज, और बैक बैक टू द बोर्ड इज अ डिफरेंट सिचुएशन। हाँ, बैक टू द बोर्ड इज back to the planning stage, because the previous plan did not work, क्योंकि वो काम नहीं किया, इसलिए आप क्या है, बैक टू द बोर्ड। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड में डिस्कशन होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, दे डिस्कस समथिंग एंड प्लान समथिंग, है ना। लूडो का खेल खेले हो ना, सांप सीढ़ी रहता है ना, तो बैक टू स्क्वायर वन। 99 सांप काटता है तो कहां पहुंचा देता है? एक पर पहुंच, जीरो कहां होता है रे पगला? एक से शुरू होता है ना। हाँ। बैक टू स्क्वायर वन। Do you still remember this word? I told you this word, the French word. A beautiful lady. Huh? How do you pronounce this word? Soigner. Soigner. A beautiful lady. करकशाह लेडी होती है ना, करकशाह लेडी, बहुत तेज तेज बोलती है, क्या बोलते हैं उसको? को बोलते हैं बैड टेम्पर लेडी। क्या है? चलो पहले अमेजोन समझो, अमेजोन किसको बोलते हैं? वॉरियर, लेडी ऑफ बिग बिल्ट, है ना, लुकिंग लाइक अ वॉरियर, इसीलिए उसका नाम अमेजोन रख दिया। क्यों? बड़ी चौड़ी नदी है, बड़ी सी अमेजोन रिवर, ब्राजील में है ना, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नाइली, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज द नाइली, sorry, the Brahmaputra. The Brahmaputra is also called the Sangpo in Tibet, है ना। कॉकवेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉकवेट होते हैं ना, जानते हो, एक ऐसी महिला जो दुष्चरित्र होती है, लुभाती है, लोगों को फंसा देती है ना। कैसे बोलेंगे?
A woman who lures men to cheat them, है ना, to trick them. coquette. और एक वो जो चिड़चिड़ाहट होती है उसका नाम क्या है? हैं? हाँ, हैं? हैं? TER, टर्मगंट. TERMAGND, T, टर्मगंट. हाँ, क्या ये इल टेम्पर्ड? ओवर बियरिंग जानते हो क्या होता है? डोमिनेटिंग, है ना, ओवर पावरिंग. बुली, बुली टाइप, है ना, बुली टाइप लेडी. अक्सर बुढ़िया होती है क्या ये? नहीं, एक बुढ़िया होती है ना. शेपेरॉन जानते हो किसको बोलते हैं? शेपेरॉन. अरे बाप रे, ये वर्ड बहुत पूछता है एसएससी में. शेपेरॉन, CHAPERON, शेपेरॉन. पता है ना तुम्हें? हाँ, ओल्डर लेडी who accompanies a younger lady to some social events as her guardian, है ना. जहां जहां फिल्म की शूटिंग करने जाती थी प्रियंका चोपड़ा, उनकी माँ जाती थी साथ में. तो her mother worked as a chaperone to प्रियंका चोपड़ा, है ना. A older woman who accompanies, accompany मतलब संगत देना, who accompanies a young lady to events, है ना. समझ में क्या रहा है? chaperone है, दोनों है. हाँ, एन भी है और NE भी है ना. वार्डन कौन होता है? पेट्रन कौन होता है? संरक्षक. कौन होता है संरक्षक? पेट्रन होता है सपोर्टर. वार्डन कौन होता है? हॉस्टल इंचार्ज. हॉस्टल इंचार्ज. अब बिल्डिंग को कौन देखता है? किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए किसको छोड़ते हैं? केयर टेकर. केयर टेकर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग. बगीचे की रखवाली कौन करता है? गार्डनर. गार्डनर गार्डनिंग करेगा, पौधा वौधा को सींचेगा, वो क्या रखवाली करेगा? रखवाली कौन करता है? केयर टेकर. लाठी लेकर बैठा रहता है, आम तोड़ने जाओगे मारेगा दो लाठी. समझ में आ रहा ना. वार्डन, पेट्रन, केयर टेकर. एप्रन जानते हो? एप्रन क्या होता है? खाना बनाने वाले रसोइये घेटवा में लगा के इसे टांग लेते हैं आगे ना, ताकि कपड़ा गंदा ना हो, है. A piece of cloth hanging from the neck and worn neck down to the knee as a covering while cooking or working in a lab. है ना. A piece of clothing, a cloth. Clothing अनकाउंटेबल नाउन होता है ना. A piece of clothing
हैंगिंग फ्रॉम द नेक, जो गर्दन से लटकता है, एंड वोन नेक डाउन, गर्दन से नीचे पहना जाता है, टू द नी, कहां तक, घुटने तक, टू द नी या टू द थाई, टू द थाई, जांग तक पहना जाता है, एज अ कवरिंग, कवरिंग के तौर पे, वाइल कुकिंग और वॉकिंग इन अ लैब, एप्रन पहन के खाना वाना लोग बनाते हैं ना। व्हाट इज अ प्रोटेक्टिव गियर? गियर जानते हो क्या होता है? हाँ, किट, क्या बोले इसको, इक्विपमेंट बोल सकते हैं क्या, है ना? हेलमेट वेलमेट पहन लेते ना इंजीनियर लोग, ताकि सर पे कुछ गिरे तो आदमी बच जाए, प्रोटेक्टिव गियर है कि नहीं? स्केबर्ड और सीथ क्या होता है? दोनों क्या होता है? मयान ही होता है, तलवार का या खंजर, खंजर मतलब चाकू, डैगर, डैगर मतलब क्या होता है? लॉन्ग नाइफ, रामपुरी, घोपिए देव, बुलबत, घोपना को क्या बोलते हैं? टैब। तो यही डैगर जो है, अगर हमने खींच लिया, अगर बोल बे, बोल बे, सो व्हाट इज दैट? एट डैगर्स ड्रॉन, दोनों लोग खंगर खींच लिए, हाँ बोल बे, बोल बे, तो अगर ऐसी स्थिति है मतलब किलिंग, हाँ, दुश्मनी की स्थिति मतलब है, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब हम्म, इन अ हॉस्टाइल रिलेशन, है ना? देर एट डैगर्स ड्रॉन, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या है? दे आर इन अ हॉस्टाइल रिलेशन, हाँ, लिख लीजिए। इसके बाद और शीत में अंतर क्या है जरा बताना। शीत लेदर का हो सकता है, लेकिन ये इसके बाद सिर्फ किसका होता है? मेटल, किसका होता है? शीत जो होता है लेदर, और उसके बाद क्या होता है? मेटल का होता है, वुड का या मेटल का, हार्ड मटेरियल का होता है इसके बाद, है ना? भांजना चमकाना, ब्रांडिश, भांजना, चमकाना, लहराना। बिहार में द पुलिस इज वेरी proactive in such cases. Whenever someone is uploading a photograph brandishing some revolver or uh, some arms, the next day they reach that person's house, arrest that person, seize the weapon, and send that person to jail. You can't brandish weapons in the open now. In a wedding, they have this licensed gun, right? So they have this. You have this. Huh? You are allowed to fire at weddings 3-4 times, something like that. No, you have. I think you get 8 bullets in 6 months. You can use 8 bullets, but you have to give an account of how these bullets and where these bullets were fired, right? If you have a license, right? लेकिन जिसके पास लाइसेंस है वो 8 ही फोड़ता है, 80 फोड़ देता है उसमें, because they get bullets from the black market and they fire, they show off that they are somebody, but when the time comes they can't fire
If you're really angry, they don't have time to fire. By the time they fire, you know. Hmm. What is the meaning of given? Hmm. Surrender, submit, समर्पण करना है ना, या रिलेंट. रिलेंट मतलब भी क्या होता है? मान जाना अंततः, जिद छोड़ देना है ना. पुट योर फुट डाउन मतलब अपनी बात पर अड़ जाना. जैसे आप कहते हैं नो, आई वोंट अलाउ इट टू हैपन, आई पुट माई फुट डाउन, मैं अड़ गया हूं, अब नहीं जाने दूंगा, है ना, ऐसा. पुट इन मतलब क्या होता है? पुट इन मतलब पुट इन a lot of efforts, yeah, a lot of hard work. You put in your papers. पेपर्स मतलब क्या होता है? रेजिग्नेशन है ना. पुट आउट मतलब क्या होता है? बुझा देना, एक्सटिंग्विश, डाउज. पुट आउट मतलब लगाना, चस्पाना. पुट आउट अ नोटिस, है ना. पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टॉलरेट, बियर, क्या होता है? सहना. पुट somebody समथिंग डाउन क्या होता है? किल या फिनिश समथिंग या somebody, है ना. पुट ऑफ मीन्स टू मेक्स, टू मेक समवन अपसेट, किसी को क्या करना? नाराज करना. पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? टालना. पुट ऑफ मतलब क्या होता है? डिले या प्रोक्रेस्टिनेट या पोस्टपोन, है ना. पुट ऑफ. सेंड ऑफ मीन्स क्या होता है? विदाई. सी somebody ऑफ मतलब किसी को विदा करना, टाटा करना, है ना. अटेंड अ मीटिंग होता है ना. अटेंड अ वेडिंग, अटेंड अ फंक्शन, अटेंड अ क्लास, अटेंड अ सेमिनार. लेकिन टेंड टू अ पेशेंट, है ना. ये फर्क समझ में आ रहा है? अटेंड टू मतलब देखभाल करना. अटेंड
टेक केयर ऑफ, अटेंड टू अ कॉल, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। रिकॉल मतलब याद करना, कोई बात है ना, या कोई सूचना, कोई नंबर है ना। ट्राई टू रिकॉल द नेम, नाम को याद करने की कोशिश करिए, है ना। रिमिनिस, रिमिनिस का मतलब होता है पुरानी चीजें याद करना और उन्हें मिस करना, है ना। हाँ, नॉस्टैल्जी, गेट नॉस्टैल्जिक। थेरेपी क्या होता है महाराज? उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार विधि, प्रक्रिया, वे ऑफ ट्रीटमेंट, अ लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। थेरेपी, थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस। मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या? जैसे घर में खूब मार खा लेते थे, जब खूब कुटाई हो जाती थी, घर छोड़ के चले जाते थे पुलिया पर, हैं वहीं बैठ के, इसे कोई तो था नहीं, ऐसे देखते रहते थे, तो सारा बिटरनेस क्या हो जाता था, कोई पानी को देखते देखते खत्म हो जाता था। इट वॉज अ थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस। यू कुड लेट गो योर एंगर, यू कुड लेट गो योर फ्रस्ट्रेशंस, इट वॉज अ थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस। है हुआ। वेपन्स का कोई दोष नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द टूल्स, इट्स अबाउट हाउ यू यूज देम, बट देर आर सम थिंग्स विच आर eternally destructive in nature. You can have no good use of them, like atomic bombs. They can do no good to you, no good to humanity. They'll always be destructive. So we started talking of the nuclear disarmament. What is disarmament? निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। Russia and America and other countries which had nuclear weapons were asked and requested to destroy their stockpile of nuclear weapons. Stockpile क्या होता है? ढेर, खजीरा, जखीरा, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियर वेपन अपने से ट्रैवल कर सकता है? नहीं, उसको क्या चाहिए? मिसाइल। मिसाइल क्या करता है? मिसाइल का काम है सिर्फ कैरी करना, मिसाइल कैरी करता है। मिसाइल ऐसे होता है, एक इसके अंदर क्षमता होती है क्या करना, लेके जाना। अब तुम इसी में क्या लोड कर दो, इसके भीतर न्यूक्लियर वेपन डाल दो, ले जाके वहीं धड़ाम से फोड़ देगा, है कि नहीं? समझ रहे ना। अब मिसाइल में चाहो तो मोहब्बत की चिट्ठी डाल सकते हो, you can have a love letter inside and you can send it to someone, right? It all depends on how you use the missile, but does it really, is it really used to carry a love letter to someone? No, it always carries a some explosive material, ले जाके फोड़ देते हैं, भाग धाम कर देते हैं। डिसआर्ममेंट, डिसआर्म मतलब क्या होता है?
आम का मतलब, आर्म्स मतलब, आर्म्स हमेशा क्या होता है, यार हमेशा पुलर होता है ना। आर्म का मतलब होता है लैस करना, हथियारों से, हथियार से लैस करना। और डिसाम मतलब हथियार विहीन करना। किसने हथियार विहीन कर दिया था, डिसाम कर दिया था महाभारत के युद्ध में? द्रोणाचार्य वॉज डिसार्म्ड बाय अर्जुना, राइट। ऐसा तीर मारा कि उनका सब तीर धनुष हट गया, ही वॉज डिसार्म्ड। और आपका अगर डिसार्मिंग स्माइल है तब है, ऐसी मुस्कान की सामने वाले का गुस्सा ही क्या कर देगा था। आप बहुत गुस्से में हैं और सामने वाला आदमी, अब आप कुछ कर ही ना पाए, है ना। कैसी हंसी, विंसम स्माइल, दिल जीत लेने वाली। सामने वाले को और गुस्सा आ जाए, ऐसा भी स्माइल होता है क्या? अच्छा, तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्मीयर, निपोड़ना हंसी। ई, क्या बोले इसको, हाँ। हम्म। हाँ? स्मर्क भी होता है, स्मर्क, स्मीयर नहीं, स्नीयर एट समवन, स्मर्क होता है, हाँ स्मर्क जो होता है व्यंग पूर्वक मुस्कुराना, है ना, व्यंग पूर्ण, नाउन भी होता है पता है ना, व्यंग पूर्ण मुस्कान, या ऐसे मुस्काना। नियर एट समवन, माखौल पूर्ण मुस्काना, मुस्काना, मुस्कान छोड़ना, स्मीयर एट समवन, है ना। स्मीयर अलग चीज होता है, स्मीयर मतलब होता है पोतना, स्मीयर मतलब क्या होता है, पोतना, जानते हो कि नहीं? स्मीयर मतलब क्या होता है, पोतना। लिक्विड कोई चीज होगा तो क्या करेगा, स्मीयर। हिज हैंड्स, हिज हैंड्स वर स्मीयर्ड इन ब्लड, हिज ब्लड। साउथ इंडिया की आजकल फिल्में कैसी आ रही हैं, हिज ब्लड स्मीयर्ड फेस, है ना। उसमें दिखाता है जो एक्टर है पूरा ब्लड उसके में, हम्म। हम्म। एक होता है गलत आरोप लगाना भी होता है, स्मीयर मतलब बदनाम करना, टू मलाइन समवन्स नेम, इमेज, है। स्मीयर नाउन देख रहे हो ना, वो अब देखो। कलंकित करना, हम्म। किसी का क्या करते हैं, बेइज्जत करना, बेइज्जत नहीं, क्या बोलते हैं उसका, रेपुटेशन खराब करना मतलब, हाँ बेइज्जत करना ही होगा ना, नहीं तो इंसल्ट हो गया। क्या करें यार, हिंदी या कैसे हिंदी भूल रहे हैं, क्या करें। कलंकित करना तो ठीक है, दोषारोपण, दोषारोपण करना,
कलंकित करना है ना, मलिन मलिन करना, छवि बिगाड़ना, है ना, स्मीयर कैंपेन। एक जन है, कहते हैं मशीन लगाओ तो इधर आलू लगाओ उधर सोना निकलेगा। अरे उनसे कहिए स्कूल में जाएं। भारत की राजनीति तो रिक्शा वाले बात करते हैं इसे। कब से प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ही सब बोलने लगा। तो थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस, व्हाट इज एडिफाइस? फसाड, भव्य फ्रंट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, है ना। अच्छा, इस एडिफाइस का फिगरेटिव यूज भी होता है। फिगरेटिव यूज, फिगरेटिव यूज मतलब लाक्षणिक प्रयोग होता है इस शब्द का, है ना। लाइक मेनी बैड provisions were hidden beneath the edifice of agricultural reforms, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज। ये समझ में आ रहा है? नाम दे दिया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज, कृषि में सुधार कानून। सुन के चला, अरे वाह, अब मेरा आया है कोई आदमी कृषि में सुधार करेगा। बट देयर वर मेनी बैड या हार्मफुल प्रोविजंस। तो देखो यहां पे क्या है, एडिफाइस का जो यूज हुआ है फिगरेटिव सेंस में यूज हुआ है कि नहीं। एक ऊपर बहुत बढ़िया देखने में कानून बना दिया और नीचे उसमें क्या नियम रख दिए, हार्मफुल प्रोविजन। समझ में आ क्या रहा है? ऐसा फसाड जानते हो ना, एन इम्प्रेसिव गेट, है ना, या फ्रंट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग which may give a false impression about the grandeur। grandeur क्या होता है? ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग ग्रैंड नहीं है, है ना, लेकिन वो लग रहा है कि बहुत ग्रैंड बिल्डिंग होगा क्योंकि गेट उसका बहुत क्या है, अच्छा है। तो फसाड वो हो गया कि नहीं। फसाड का भी फिगरेटिव सेंस में क्या होता है, यूज होता है ना। यहां फसाड लिख सकते हैं कि नहीं, है, लिख सकते हैं। है कि नहीं। ये क्या है भैया, आर्क है। क्या ये आर्क, इसको क्या बोलते हैं, चाप। ये क्या है भैया, आर्च। आर्च मतलब क्या होता है, मेन, द आर्च राइवल। आर्च राइवल मतलब द मेन। सो व्हाट डू यू थिंक, which country is the arch rival? India's arch rival, China. Yes, Pakistan has never been a threat to this country. Real threat is, the real threat is China. तो आर्चर होता है ना, आर्चर कौन होता है भाई, धनुर्धर, है ना, धनुर्धर, तीरंदाज। क्या कर रही हो कविता, कुछ तो करो। देखो आर्चरी क्या होता है,
तीरंदाजी, आर्चर है ना। अभी आर्केड पढ़ाया था ना कल, क्या था आर्केड? एरिया, एन एरिया within area surrounded by arc like structures, है ना। सीपी गए हो? कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस गए हो कि नहीं? गए हो? वहां पे देखो सब व्हाइट व्हाइट बिल्डिंग है, सब आर्क है ना, ओपन स्पेस आर्किड है ना।